Dear students, today we will read the lesson Landscape of the Soul, written by Nathalie Trouveroy. Landscape of the Soul compares the Chinese view of art to the European view with examples. Viewing any piece of creative art is actually a landscape of one's soul. The classical Chinese painters do not intend to produce an exact copy of the landscape. They want their viewers to see the spirit behind their work. It is conceptual, that is painted. But the European artists try to create a perfect imitation. In this chapter, the writer contrasts the European Western form of landscape painting with the Asian Eastern form of art. He says that the landscape of a European artist makes a figurative painting. It gives an illusionistic likeness of reality, but the landscape of an Asian artist is an essence of inner life and spirit. It is not a landscape of outward images, it is a landscape of the soul. आत्मा का चित्रण, आत्मा को प्रभावित कर देने वाला परिदृश्य, landscape of the soul. In order to illustrate this difference, the writer gives two anecdotes, one related to a European painter and the other related to an Asian painter. About the author, Nathalie Trouveroy is an art historian. She holds a master's degree in history of art and archaeology from University of Belgium. She is also the wife of Guy Trouveroy, ex-Belgian ambassador to India, and has traveled to many countries. She is also known for her translated work of City of Jinns, a book by William Dalrymple. She holds deep interest in Indian architecture. Theme of the lesson. The chapter is about how different the Chinese art form is from the European art form. The writer uses two stories to make a contrast. European art is about reproducing an actual view, whereas Chinese art is not creating a real landscape. European art is an artist's way to let viewers show exactly what he wants them to see in the landscape. Chinese art is the artist's spiritual and inner voice, where you can travel from any point and it lets the viewer create a path for their imagination. ये चैप्टर दो भिन्न कलाकृतियों के प्रकार के बारे में चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट को डिफर किया गया है और इस भिन्नता को दिखाने के लिए लेखिका ने दो डिफरेंट स्टोरीज का यूज किया है. यूरोपियन आर्ट इज अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू. यूरोपियन आर्ट जो है वो वास्तविक चित्रण है, वेयर इज चाइनीज आर्ट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग ए रियल लैंडस्केप. चाइनीज आर्ट जो है वो वास्तविक चित्रण परिदृश्य का नहीं है. यूरोपियन आर्ट is an artist's way to let viewers show exactly what he wants them to see in the landscape. यूरोपियन कला वो है जिसमें कलाकार ये दिखाता है कि व्यूअर, दर्शक खुद ही उसमें जो देखना चाहे वो देखे, ऐसा चित्रण करता है. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. एक बड़ी आकर्षक पुरानी कहानी है जो वू डाउजी पेंटर के बारे में है, जो 8वीं शताब्दी में हुआ करते थे. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. उनकी अंतिम जो कलाकृति थी, जो परिदृश्य उन्होंने बनाया, वो टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग को समर्पित थी. टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, उनके महल की दीवार को डेकोरेट करने के लिए उन्होंने बुलाया था, उस पर उन्होंने चित्रण किया था. The master had hidden his work behind a screen. कलाकार ने अपने चित्र को एक पर्दे से ढक के रखा था. So only the emperor who would see it, कि केवल शासक ही उसको देख सके. For a long while the emperor admired the wonderful scene. emperor ने, शासक ने देखा और एडमायर किया.
बहुत ही ब्यूटीफुल तस्वीर बनाई थी। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगलों, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, आसमान में उड़ते हुए तैरते हुए बादल, मेन ऑन हिली पास, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए व्यक्ति मनुष्य, बर्ड्स इन फ्लाइट, तमाम पक्षी उड़ते हुए। लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, महाराज देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस गुफा में जो पहाड़ी के नीचे स्थित है, ड्वेल्स ए स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, पेंटर ने ताली बजाई और उस केव का प्रवेश द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कहा कि अंदर जो है, गुफा के अंदर की जो तस्वीर बहुत भव्य है, जिसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महाराज मुझे दिखाने की आज्ञा दे, मैं दिखाता हूं आपको कितना भव्य है अंदर से। द पेंटर एंटर्ड द केव, वो कलाकार गुफा में प्रवेश कर गया, पर द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन उसके प्रवेश करते ही गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और इसके पहले कि शासक कोई शब्द कहता, वो हिलता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो पेंटिंग ही दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, और वो डाउजी की कलाकृति का जो पेंटिंग की गई थी उसका अंश मात्र भी नहीं बचा, सब गायब हो गया। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो कलाकार कभी भी इस दुनिया में दोबारा नहीं दिखा। सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, और ऐसी कहानियां चाइना की पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ोंगजी आर फुल ऑफ देम, इनकी किताबें इनसे भरी हुई हैं ऐसी कहानियों से। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, वे टीचरों को, अपने शिष्यों को दिशा निर्देश करने में ऐसी कहानियों का बहुत अहम रोल होता है, उनके सही शिष्यों को सही दिशा दिखाने में। बियॉन्ड द एनेक्डोट, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड, और इस कहानी के माध्यम से वो उस आत्मा को दर्शाती है जिसको दिखाने के लिए कलाकार ने वो कलाकृति बनाई है। ये कहानियां कही गई हैं। द पेंटिंग बाय वू डाउजी, द ऑथर बिगिंस by describing the tale about the 8th century Chinese painter Wu Daozi. He was painted a landscape for the Tang Emperor Zhuangzong and hidden it behind a screen so only the emperor could see it. The emperor admired the scene and discovered forests, mountains, waterfalls, clouds, men and birds in the painting. The painter pointed out a cave at the foot of the mountain and claimed that it is inhabited by a spirit and that the insides are splendid. He then proceeded to step into the cave and the entrance closed behind him and the painting vanished. Such anecdotes are plenty in Chinese classical education and the books of Confucius and Zhuangzi, and reveals the spirit in which art was considered in China. Please understand. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. और उसके विपरीत एक दूसरी प्रसिद्ध कहानी है एक पेंटर के बारे में जिसने ड्रैगन की आंख को नहीं बनाया इस भय से कि उसकी आंख निकल के तस्वीर से निकल जाएगी, उड़ने लगेगी। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting in 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin. और दूसरी कहानी है हमारे लोकल से ही कि एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्विंटन था, वो एक पेंटर की बेटी के प्यार में पड़ गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, पिता ने एक ऐसे प्रोफेशन के व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया
शादी करने के लिए अपनी बेटी को के साथ। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। तो क्विंटन जो है वो पेंटर के स्टूडियो में धीरे से एंटर किया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और जो वो तस्वीर बना रहे थे पेंटर, उस पर एक मक्खी का चित्र बना दिया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट। इतनी बखूबी रियलिस्टिक अंदाज में कि पेंटर ने उसे उड़ाने की कोशिश की, उसको वास्तविक मक्खी समझा के आके बैठ गई है। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, और इसके पहले कि उसे ये पता चलता कि ये किसी ने चित्र बनाया। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और वो क्विंटन के इस अद्भुत कला को उसने समझा और तुरंत उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age. उन्होंने अपनी बेटी के साथ उसका विवाह कर दिया और वो अपने समय का बहुत प्रसिद्ध पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों कहानियां ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार के आर्ट को ये व्यक्त करती हैं। Illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. यूरोप में जो कलाकारी चित्रण है वो भ्रम की स्थिति पैदा कर, रियल वास्तविक के समान भ्रम पैदा करने वाली। और जो इस एशिया की कलाकृति है, जो कलाकार जो चित्रण करते हैं, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, वो आंतरिक जीवन की और आत्मा की तस्वीर है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशन्स ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज कहानी में शासक ने उसको चित्रण करने का मौका दिया और उसके बाह्य सुंदरता की तारीफ की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट ने उन्हें उसके काम के सही वास्तविक अर्थ समझाया कि अंदर से कितना भव्य है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्क्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। एक शासक अपने द्वारा जीते गए साम्राज्य पे शासन तो कर सकता है, लेकिन एक केवल कलाकार ही जानता है अपने कला के मूल्य को और उसके कीमत को। लेट मी शो द वे, जैसे कलाकार ने कहा कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए महाराज, ये कितना भव्य है अंदर से। द डाओ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ ऑफ द और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारे ब्रह्मांड का जो रहस्यमयी कार्य क्रिया है। द पेंटिंग इज गॉन, वो पेंटिंग चली गई, गायब हो गई। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन उसको बनाने वाला कलाकार अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी आर्थिक और उसके वास्तविक जो उसने चित्रण किया था, अंदर से इतनी भव्यता दिया था, उस गोल को प्राप्त कर लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उसने। Chinese art and European art differences. The author contrasts the story from another with European heritage. A blacksmith, in his pursuit to win the approval of the painter's father of a girl he wanted to marry, painted a lifelike fly on the painter's latest panel. The fly appeared to be so real that the painter tried to sweat it before he realized what had happened and admitted the blacksmith to be an apprentice and allowed him to marry his daughter. In the Chinese story, the emperor appreciates the outer appearance of the painting while only the painter knows the way within. In European art, artists try to achieve a life-like quality in their paintings to make the viewer see what they wish them to see. Please watch the important points. The difference between Chinese art and European art. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. एक चाइनीज पौराणिक जो परिदृश्य जो कलाकार चित्रण करते हैं, उसका अर्थ एक वास्तविक दृष्टिकोण देना, एक चित्र दृष्टि देना नहीं है। ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि पश्चिमी चित्रण है। Whereas
द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बारो हिज आइज, जहां पे यूरोपियन पेंटर ये चाहता है कि वो उसकी नजरों से उसको आप लोग देखें, लोग उसकी नजरों से देखें। एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही saw it, जैसा कि उसने देखा किसी लैंडस्केप परिदृश्य को, जैसा उसने चित्रण किया वैसा ही उस देखें। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक खास दृष्टिकोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज पेंटर जो है वो एकमात्र दृष्टिकोण से कोई चित्रण नहीं करता, अपना ही दृष्टि नहीं देता। वो चाहता है कि लोग अपनी नजरों से जहां से देखना चाहें वहां से देखें। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका जो परिदृश्य है वो वास्तविक नहीं। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप उसमें उस चित्र में कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, जहां से देखना चाहें देखें। देन ट्रेवल इन इट, फिर उसमें यात्रा करें। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और आर्टिस्ट उसमें एक रास्ता बनाता है आपकी नजरों के लिए, आपके व्यू के लिए, कि आप ऊपर नीचे यहाँ वहां जहां देखना चाहें, जिधर से देखना चाहें देखें। देन बैक अगेन, फिर से वापस आ जाए, फिर से देखें। इन ए लेजरली मूवमेंट, आप अपने हिसाब से एकदम फ्री टाइम में आप उसको देखें। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल, और ये सत्य है जो हॉरिजॉन्टल चित्रण होता है, लंबवत, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। और इसमें ऐसा चित्रण है कि आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान और अपने हिसाब से आप उसमें भ्रमण कर सकते हैं। adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting, समय से परे आप यात्रा कर सकते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और इसमें जो व्यूअर है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है, बहुत एक्टिव होकर के उसको चित्र को देखता है। वो डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और वो निर्णय करता है कि किस तरह से उस पेंटिंग को वो भ्रमण करेगा, वो देखेगा। ये पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक ऐसा उसका पार्टिसिपेशन होता है व्यूअर का जो फिजिकल भी होता है और मेंटल और आत्मिक भी होता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बारो हिज आइज, चाइनीज पेंटर नहीं चाहता कि आप उस चित्र को उसकी नजरों से देखें। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप अपने दिमाग से, आप अपने हिसाब से उसमें भ्रमण करें, उसको देखें, समझें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, वो परिदृश्य आत्मिक होता है, ये स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, आप अपने हिसाब से उसमें भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई, लिटरली माउंटेन वाटर, और इस कॉन्सेप्ट को संसुई की तरह से एक्सप्रेस किया गया है। माउंटेन वाटर, पर्वत का पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, इन्हें मिला करके लैंडस्केप शब्द दिया गया है, इसको रिप्रेजेंट करता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक तस्वीर की के दो तत्व। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दो ध्रुवों को दर्शाते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो डाउ के ब्रह्मांड के व्यू की परिकल्पना को दर्शाते हैं। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, पर्वत जो है, यांग शब्द जो लंबवत है, हेवन की तरफ जाता है। स्टेबल, स्थिर है, स्थूल है, गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, सूर्य की रोशनी में सूखा हुआ है। वाइल द वाटर इज इन, इन जो है वो पानी शब्द है। हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो हॉरिजेंटल है और पृथ्वी पर स्थित है। फ्लूइड, द्रव के रूप में। मॉइस्ट एंड कूल, द्रव के रूप में, वाष्प के रूप में, और ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और इन के साथ जो उसका इंटरेक्शन है, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, वो स्त्री तत्व है इस ब्रह्मांडी संरचना की।
एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और उसका यांग शब्द जो है एक्टिव एंड मैस्कुलिन, वो क्रियाशील है, और मैस्कुलिन है, पुरुषवाचक है, इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाउज्म, और यही डाउज्म की परिकल्पना है. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और अक्सर जिसे हम ओवरलुक कर देते हैं वो तीसरा एलिमेंट है, तीसरा तत्व है. द मिडिल वाइड, मध्य का खाली स्थान, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर इंटरेक्शन होता है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इसकी आप तुलना यौगिक प्राणायाम से कर सकते हैं. ब्रीद इन, इसमें अंदर सांस लेते हैं, रिटेन, उसे रोकते हैं, ब्रीद आउट, रोकते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, और जो सांस को रोके रखने की प्रक्रिया है, यही वो स्थान है जहां पर मेडिटेशन होता है. द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, ये मध्यवर्ती स्थान जो है बहुत ही आवश्यक है. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और चाइनीज कलाकृतियों में, परिदृश्यों में जो वाइट स्थान है, सफेद, जो अनपेंटेड है, जिसे कलाकार पेंट नहीं करता, उसका बहुत महत्व है. वो मिडिल वाइड की तरह से है. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, और ये व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये मध्य वाला स्थान. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, इस स्थान में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स, वो दोनों ही ध्रुवों के बीच में कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम है. व्यक्ति ही संचार का माध्यम है, व्यक्ति जो है मध्यम स्थान की तरह से है. हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसका होना बहुत आवश्यक है. इवन इट इज ओनली सजेस्टेड, यद्यपि केवल सुझाया गया है. फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, वो परिदृश्य की आंख है. व्यक्ति ही वो माध्यम है, इंपॉर्टेंट, वो कम्युनिकेशन का माध्यम है हेवन और अर्थ के बीच में. Chinese art and European art differences. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, while a European painter wants you to borrow his eyes and see exactly what he saw. Chinese artists create a path for your eyes to follow, allowing the viewer to enter form from any point and discover the painting as it unfolds. This is further true for horizontal scrolls that add a dimension of time as the viewer opens each subsequent section. The word used to represent landscape in Chinese is sansui, which literally means mountain water. The mountain stands vertical and represents the Taoist principle of yang, while the horizontal water is yin, yang yin. The author draws the reader's attention to the middle void of yin and yang, and draws a parallel to the yogic tradition of pranayama. Breathe in, retain, and breathe out. The middle void is where meditation occurs. The author claims that the middle void is represented using the color white in Chinese landscape. Man finds a role in this space between heaven and earth as a conduit of communication between the two poles. In Francois Cheng's words, man is the eye of the landscape. Getting inside outsider art. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art breadth in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, जब फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे ने इस आर्ट ब्रेड को 1940 में स्टार्ट किया, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तब इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं था. स्टार्टिंग में उसे वेल्ड करके, ढक करके रखा गया. आउटसाइडर आर्ट
of those who gave no right to be artists as they have received no formal training. क्योंकि ये कलाकारों को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिया गया है. Their works are stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. वो उनके जो कार्य हैं वो विपरीत है जो मेन स्ट्रीम में जो है कार्य. Around the time Dubuffet was propounding his concept, in India an untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden. इंडिया में भी एक कलाकार वर्षों पहले एक जंगल को काट करके बनाना शुरू किया. ए गार्डन स्कल्प्टेड विथ स्टोन, पत्थरों से एंड रिसाइकल मटेरियल से, इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन, जिसे आज रॉक गार्डन के रूप में हम जानते हैं, एट चंडीगढ़. इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद और उसके 80 ईयर पुराने बुजुर्ग क्रिएटर जिनका नाम नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइड आर्ट. उन्हें बहुत बड़ा क्रिएटर माना जाता है आउटसाइडर आर्ट का. द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. उन्होंने छापा इस चीज को, नेक चंद की इस कलाकृति को. द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट ऑफ रॉट was a worse in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car, सब कुछ किसी भी चीज से उन्होंने ये इसका निर्माण किया. टिन, पुरानी टूटी हुई कार, could be material for a work of art. वो इस कलाकृति के लिए मटेरियल हो सकता है. Something नेक चंद has taken to dizzying heights, जिसे नेक चंद ने एक बहुत ही ऊंचाई दी. Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. इस कला को पहचानना जो एक व्यक्ति बना सकता है, अपने सपनों को जी सकता है, अपने सपनों के मुताबिक कलाकृति को बना सकता है, इस काम के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया गया. द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को will be honoring him by way of European exposition of his works. स्विस कमीशन यूनेस्को की उनको सम्मानित कर रही है, उसको सम्मानित किया by way of European exposition of his works, जो जिस शैली में उन्होंने अपना कार्य किया. The 5-month interactive show Realm of Nek Chand beginning October will be held at leading museums of Switzerland. और स्विट्जरलैंड में तमाम म्यूजियमों में उनके कार्य को दर्शाया गया. Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation. और उनका सबसे बड़ा चीज पुरस्कार था बागीचे में घूमना. लोग जब जाते हैं वहाँ रॉक गार्डन घूमते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को पहचानते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और आनंदित होते हैं. नेक चंद सेज, नेक चंद ऐसा कहते हैं. Getting inside outsider art. French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s. This genre describes the art of those who have not received any formal training and yet show talent and artistic insight. French painter Jean Dubuffet 1940 में इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहते हैं. ये जेनर जो है ऐसे लोगों की कला के बारे में है जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टैलेंट को, अपने कलाकृतित्व को दिखाया, दर्शाया. Around the same time in India, an untutored genius was creating paradise. He cleared a little patch of jungle. उन्होंने एक जंगल के छोटे से स्थान को साफ किया and sculpted what he know today as the rock garden at Chandigarh, जिसे हम आज चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के रूप में जानते हैं. Its creator Nek Chand is considered India's biggest contributor to outsider art. His work was featured in the 50th issue of Raw Vision,
a UK-based magazine focused on promoting outsider art. The notion of art, blood or raw art, was about works in their raw state. Nick Chung took this concept up to dazzling heights. बहुत हाइट्स तक ले गए निक चंग, ऊंचाइयों को छुआ अपने इस कार्य के द्वारा. द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्ट. स्विस कमीशन यूनेस्को ने उनके इस कार्य को पहचाना और सम्मानित किया. An outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. Thank you very much, my dear students, for watching the video presentation.